Hello student, I am Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. We have seen up to 10 problem and I hope you are getting me, you are understanding dissolution of partnership firm and you are doing practice also. क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है. Now we'll start this 11th one. Now what is the difference between 10th one and 11th? So if you can read here, when all partners become insolvent, जब सब पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो हमें क्या करना है. अभी तक हमने देखा कि वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, देन लास्ट वीडियो में देखा टू पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. नाउ इट्स टाइम टू सी व्हाट वी हैव टू डू व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसीजर डिफरेंट होगी. ठीक है, बट डोंट वरी, मैं हूँ आपके लिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको स्लोली. आपको सिर्फ पेपर, टेक्स्ट बुक नहीं, नोटबुक पेंसिल लेकर बैठना है. ओके, शैल वी स्टार्ट. ओके, नाउ रीड द फर्स्ट बैलेंस शीट. ऑल द फॉलोइंग बैलेंस शीट of firm 3 equal partner, that means 1:1:1. Now the balance sheet is 31st March 2019. This side is a liability and here is the asset. Now you can see here machinery, furniture, stock, cash at bank, they have that much asset. This is a profit and loss account. This is called undistributed loss, and of course this should be distributed among the partners according to their ratio. Now here they have given equal. Three partners say equal ratio, that means 1 is to 1 is to 1. Now we'll move to the liability side. We have a capital, Preeti, Priya and Prachi. Then we have a two external liability, trade creditors, loan. But see here what they have given, secured by the machinery. Now this is a little bit different. You know what is a creditors and credit trade creditors is one and the same. कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के बड़ी बड़ी कंसेप्ट देते हैं, बट डोंट वरी, ट्रेड क्रेडिटर्स का ही मतलब ही होता है क्रेडिटर्स. नाउ लोन, दिस इज सिक्योर्ड बाय द मशीनरी. इसका मतलब क्या है, अगर वो लोन पे नहीं कर पाए तो उन्हें क्या करना है, मशीनरी उन्होंने मॉर्गेज रखी है बैंक के पास या कोई फ्रेंड्स के पास, जिसके पास से भी उन्होंने लोन लिया होगा उसे गारंटी दी होगी कि मशीनरी हम बेचेंगे और जो भी अमाउंट आएगी उससे हम लोन पे करेंगे. ठीक है, जैसे देखो हाउसिंग लोन होता है, हमारा घर मॉर्गेज होता है. अगर हम ईएमआई पे नहीं कर पाए 3-4 तो बैंक नोटिस देती है और कुछ दिनों के बाद बैंक क्या करती है, हमारा घर ही नीलाम करती है. So this is a security, loan against security. Okay. Now they have given the adjustment firm dissolved due to insolvency of all partner. Machinery sold 18,000, furniture fetch 14,000. Fetch का मतलब होता है they get amount from the furniture 14,000. That means they sold the furniture. Stock realized 35,000. So machinery, furniture and stock. See, machinery, furniture and stock they sold out. ओके. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000. ऑफ कोर्स हर डिसोल्यूशन प्रोसेस में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता ही है, खर्चा तो होता ही है. ठीक है, सो दैट इज 2000. नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची. Yes, but they recovered 3,400 from Preeti Private Estate. Now, as you know, partners' liability is unlimited. Means if they fail to pay the liability, that means company or firm can recover the amount from their personal private property. जैसे विजय माल्या का हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, आखिर में उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ लगाया, वो बेचा और पैसे वसूल किए. सेम हियर. Okay, so close the books of account. So this is your question. Now we'll move to the solution. Now which account you have to open? Basically, three accounts you have to open. First is a realization account, second partner's capital, and third is a cash at bank. So make a habit, open cash oblique bank. Sometimes they use cash in hand, sometimes they use cash at bank. तो टेंशन ही नहीं, आप ओपन करते वक्त कैश ऑब्लिक बैंक ओपन करो. ठीक है, सो these three accounts you have to open. Fourth partners loan account होता है, but here see here no partner's loan account is there. Loan is there, but that is not a partner's loan.
ठीक है। सो अगर पार्टनर्स का लोन होता तो हमने सेपरेट अकाउंट ओपन किया होता। सो दिस 3 अकाउंट्स तो हमें ओपन ही करने हैं, लेकिन लेकिन आज हमें और 3 अकाउंट नए ओपन करने हैं। अब ये 3 अकाउंट कौन से? मिस आपने तो अभी तक सिखाया ही नहीं और कोई नए अकाउंट्स, हमें तो 3 ही अकाउंट्स पता है। सो ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई वी हैव टू ओपन मोर 3 एक्स्ट्रा अकाउंट। सी, फर्स्ट विच अकाउंट वी हैव टू ओपन, ये समझ लो। तो हमें अकाउंट एक ओपन करना है क्रेडिटर्स, सेकेंड लोन, एंड थर्ड इज अ डेफिशिएंसी अकाउंट। अब ये कौन से अकाउंट है मिस? हमने तो आज तक ओपन ही नहीं किए कभी क्रेडिटर्स का या लोन का अकाउंट ओपन, तो यहाँ पे क्यों करना है? सो पे अटेंशन व्हाट आई एम टेलिंग यू। हियर वी नीड टू ओपन separate account of external liability because the main factor is that all partners become insolvent। यहाँ पे अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए हैं तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि भैया क्रेडिटर्स को और लोन को पेमेंट कौन करेगा, और अगर पेमेंट करना है तो उतनी कैश है? देखो यहाँ पे है क्या? हियर दे हैव गिवन ओनली 10,000, बट पे तो कितना करना है उन्हें? 50 प्लस 30, पे तो करना है 80,000। अब तो यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्रेडिटर्स, लोन, एक्सटर्नल लायबिलिटी ज्यादा है कैश से ज्यादा, और ऊपर से और पार्टनर्स भी सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए हैं। सो व्हेन, राइट डाउन, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, सी, अंडरलाइन इट, ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, वी हैव टू ओपन सेपरेट अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। Sometime it will be a creditors, maybe bills payable, maybe bank loan, maybe loan from friends, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल लायबिलिटी का भी अकाउंट ओपन करना है। जैसे जैसे हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे पास मतलब क्या, प्रीति, प्रिया एंड प्राची के फर्म के पास जैसे पैसे आएंगे, दे विल ट्राई टू पे आउट फर्स्ट टू द एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है। इफ यू वॉच माई फर्स्ट वीडियो, मैंने लास्ट स्लाइड में यही बताया कि अपने को क्या क्या पे करना है। सबसे पहले तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है, वो तो हम पे कर सकते हैं। सी, वी हैव अ 10,000, तो 2,000 इट्स सिंपल, वी कैन पे आउट। बट द बिग क्वेश्चन अराइज ऑफ क्रेडिटर्स एंड लोन, सो ये भी हमें पे करने हैं। लेट्स सी क्या होता है। सो रेडी, विल गो। सी, दिस इज a realization account, partners capital account and the cash oblique bank, this is a regular account। ये तो हमें अब पता है कौन से अकाउंट है, बट 3 more accounts we have to open। छोटे छोटे लाइन्स के, ज्यादा बड़े बड़े ओपन मत करो, हार्डली 3-4 लाइन के ओपन करो। क्रेडिटर्स अकाउंट, लोन अकाउंट एंड लास्ट वन इज अ डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है। और आज हम कैश अकाउंट टैली नहीं करेंगे, हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होना चाहिए। ठीक है। सो विल स्टार्ट, डोंट वरी, बहुत इजी प्रॉब्लम है। चलो विल स्टार्ट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू डू। ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू ट्रांसफर ऑल असेट, विच साइड? asset means debit side, this all transfer debit side. So right here to sundry asset, machinery, furniture, stock, total becomes 86,000। posting has a one effect, तो हमने एक बार लिख चुके हैं। ठीक है। now what about cash? of course we have a separate account, now put it cash at bank 10,000। ठीक है। now the next, profit and loss account 84,000। now what we have to do? Of course we have to distribute among the partners according to their ratio. Their ratio is equal, that means 1 is to 1 is to 1। and which side? Debit side, this is called undistributed loss here। मैंने किया यहाँ पे 28,000 28,000 28,000। then now we'll move to the liability side। वी फिनिश असेट साइड, देखो यहाँ पे मैंने स्किप किया है। नाउ विल फोकस ओनली लायबिलिटी, पूरा क्वेश्चन नहीं बैठ रहा था, अब मैंने सिर्फ लायबिलिटी का पार्ट बताया आपके सामने। ठीक है, तो आपको मोबाइल पे भी अच्छे से दिखे। सो नाउ दिस कैपिटल 40 35 एंड 25, लायबिलिटी मींस विच साइड? क्रेडिट साइड, ये आपको याद होना चाहिए। अब नाउ विल मूव टू द क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रीति, प्रिया एंड प्राची, सी हियर वी फिनिश दिस वन। डन। ऐसे पेपर में भी कट करो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंसिल से कट करो ताकि हम एक भी आइटम भूल नहीं जाते हैं. नाउ विल मूव टू द ट्रेड क्रेडिटर्स एंड लोन. अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट नहीं होते, सिंपल डिसोल्यूशन होता, तो ये दोनों हमने कहाँ ट्रांसफर किया होता, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, है ना. अभी तक हमने ऐसे ही किया है, बट यहाँ पे हमें सेपरेट अकाउंट ओपन करना है. अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाई वी आर ओपनिंग सेपरेट अकाउंट, बिकॉज ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. ठीक है. सो मेक अ सेपरेट अकाउंट. ऑलरेडी वी ओपन ए सेपरेट अकाउंट. सो चलो सेपरेट अकाउंट में विच साइड विल गो, ऑफ कोर्स लायबिलिटी मींस क्रेडिट साइड, सो विल मूव टू द क्रेडिट साइड. सी हियर, क्रेडिटर्स हमने लिखा 50,000. देखो 50,000 लायबिलिटी मींस क्रेडिट साइड, सो we'll do credit side. Now loan, so we'll write here loan. See here 30,000. Done. We finish. So that means posting we finish. Now we'll move to the adjustment. Now see, overall ये अपना picture है. This is called posting. एंड हर एक पोस्टिंग को आधा आधा मार्क्स तो होता है, तो सी यहाँ पे आधा मार्क्स मिला. ओपनिंग पे ज्यादा करके वो मार्क्स नहीं देते हैं, उन लोग कभी कभार दे भी देते हैं, बट यहाँ पे हमें हाफ 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 मिला, है ना. सो दिस ऑल बिकम्स 2, और प्लस क्रेडिटर्स में वगैरह भी हमने की है एंट्री, तो पूरे पोस्टिंग को हमको 2 से लेके 3 तक मार्क्स आराम से मिल जाते हैं. ठीक है. नाउ विल सी एडजस्टमेंट. नाउ सी, आपके सामने मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट लेकर आई और बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया है, तो उसने मैंने कट कर दिया, सिर्फ एडजस्टमेंट रखी क्योंकि प्रॉब्लम बड़ा था और ये अपने स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, तो मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट देखा है. नाउ यस, वन मोर थिंग, बुक्स आर अवेलेबल एट स्टॉल नाउ. तो अब आप जाके बुक्स ले सकते हो ताकि आपको फिजिकली ज़्यादा इजी होगा, बुक सामने होगी और वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो अपने बुक्स अब अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है, तो मार्केट में जाके ले सकते हो आप. Okay, now the firm was dissolved due to insolvency of all partners. Machinery sold 18,000. कोई कुछ नया नहीं है, कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट होगा, यू ओनली टेल मी. मन में आंसर रेडी रखो आपका. मशीनरी सोल्ड, सोल्ड मीन्स एक तो कैश आएगा, पैसे है भैया, मिले हमें. एंड सेकेंड इज मशीनरी, दैट मीन्स सोल्ड की है, मतलब रियलाइज की है, रियलाइज मतलब ही सोल्ड, तो एक इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन. सो फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन, सेकेंड इफेक्ट cash. Realization, which side, machinery sold है, that means firm get the income, and realization is a nominal account, so debit expenses and losses, credit income और gain. देखो हर प्रॉब्लम में मैं आपको लिखवा के दे रही हूँ, तो आपका भी हाथ चलना चाहिए, आप भी खुद लिखना चाहिए वहां पे, ताकि जब बोर्ड के एग्जाम में आप अपियर होगे तो आपके आंखों के सामने ये दिखना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे इनकम है, दिस इज इनकम फॉर द फर्म, सो विल राइट क्रेडिट साइड. जिन्हें रूल समझ में नहीं आता है तो उनके लिए मैंने ट्रिक बताई है. मशीनरी ने एंट्री कहाँ से की थी, डेबिट से की थी, तो अब जब बाहर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, क्रेडिट में जाएगा. क्या लिखोगे, सेकेंड इफेक्ट हमको कैश में जाना है तो हम ऑफकोर्स कैश का नाम लिखेंगे, सो विल राइट कैश 8,000. डन. नाउ सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में अगर कैश है तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन है. डन. वेरी इजी. नाउ सेम अबाउट द फर्नीचर. फर्नीचर फेच 14,000, मतलब फर्नीचर से कितने पैसे मिले, 14,000. अगेन दे गेट द इनकम, सो विल अगेन राइट रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बाय कैश 14,000. रियलाइजेशन सी एंट्री की थी मशीनरी ने डेबिट से, एग्जिट हो गई वो क्रेडिट से. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, कैश और बैंक, बिकॉज सेकेंड इफेक्ट विल गो इन कैश अकाउंट. नाउ रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश, तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन. डन. स्टॉक रियलाइज, अगेन सेम, नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड. अगेन स्टॉक ने एंट्री यहाँ से की थी, बाहर वो यहाँ से आएगा. दिस इज ऑल्सो इनकम फॉर द फर्म, जस्ट लाइक दिस all are income for the firm, so we write credit side. ठीक है. सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश, तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन. सी ये 3 मार्क्स आपके हाथ में ही होने चाहिए, बोर्ड में ये आने ही वाली है एडजस्टमेंट 101%. तो ये 2-3 मार्क्स तो पक्के, और पोस्टिंग के 2 मार्क्स, तो 5 मार्क्स तो देखो भैया, हाफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और वी गेट द 5 मार्क्स. सो अकाउंट इज वेरी इजी, सिर्फ ध्यान से डेबिट एंड क्रेडिट आपको करना है. ओके. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो वन अकाउंट विल गो रियलाइजेशन, एंड ऑफ कोर्स खर्चा है भैया पैसा, सो सेकंड अकाउंट विल गो
कैश. नाउ वी रियलाइजेशन विच साइड, एक्सपेंसेस इज गिवन. खर्चा भी तो है उनको ये सब सेल करने के लिए. उनको कोई कमीशन देना हो पड़ा होगा, कोई एक पर्सन को, बंदे को अपॉइंट किया होगा कि भैया ये सब बेच डाल, तुझे बेचने के बाद हम कमीशन देंगे. दिस ऑल कम्स अंडर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, सो डेबिट द एक्सपेंसेस. एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो कैश, सो विल राइट रियलाइजेशन के डेबिट में कैश 2000. सेकेंड इफेक्ट कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन, because here cash increase, sorry decrease, here increase. So we'll write here पहले they have 10,000, then this all they sold out machinery furniture and they get that much, so this all amount collected और उसमें से 2000 they pay, so it's less minus, so decrease. गॉट इट. देखो अब उनके पास इतना पैसा जमा हुआ है, इसमें से उन्होंने रियलाइजेशन पे किया है एक्सपेंसेस. अब देखते हैं क्रेडिटर्स के और लोन के हिस्से में कितना पैसा आता है. पे तो करना ही है बेचारों को, खाली हाथ तो लौटाएंगे नहीं हम उन्हें, तो कुछ तो पैसे भैया देंगे. और जो बचे हैं देखते हैं क्या करते हैं. चलो विल मूव फॉर द. नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची. अब पैसे, अब बेच बाच के तो सब हो गया, अब पैसे कहाँ से जमा करेंगे फर्म. फर्म को याद आया, अरे प्रिया प्राची प्रीति से पैसे वसूल करो. सो उन्होंने किया, लेकिन प्रिया और प्राची इतने कंगाल हो चुके थे कि उनके पास से कुछ भी अमाउंट वसूल नहीं हुई. हाँ, लेकिन प्रीति की हालत थोड़ी ठीक थी, सो फर्म ने उससे कितना वसूल किया, 3400. नाउ टेल मी सेस टू इफेक्ट. ऑफ कोर्स वन इफेक्ट, प्रीति's नेम इज गिवन. जब पार्टनर्स का नाम देते हैं तो वन अकाउंट गेट इफेक्टेड, पार्टनर्स कैपिटल. And second, what they received, of course cash, so second effect will go cash account. So now tell me, Preeti here receiver or giver, आप बताओ. पार्टनर्स इज अ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे सोचो प्रीति रिसीवर है या गिवर है. पिक्चर इमेजिन करो, प्रीति ने सब अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसे थे फर्म को दिए, दैट मीन्स प्रीति इज द गिवर. सो ऑफ कोर्स विल राइट क्रेडिट साइड. एंड व्हाट विल राइट, बाय कैश. सी यू कैन राइट हियर जीरो, या यू कैन पुट हियर लाइक डैश, क्योंकि इनसे कुछ वसूली नहीं हुआ है. ठीक है, सो यू कैन राइट हियर जीरो, यू कैन पुट हियर डैश, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा. डन. नाउ सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल, दैट मीन्स प्रीति के क्रेडिट में कैश, तो कैश के डेबिट में प्रीति कैपिटल 3400. ये अभी तक आपको समझ में आया होगा. एक दूसरे के अकाउंट में नाम लिखना है. कैश के अकाउंट में प्रीति का नाम, प्रीति के अकाउंट में कैश का नाम. रियलाइजेशन के अकाउंट में कैश का नाम, कैश के इसमें रियलाइजेशन का नाम. ठीक है, दिस इज सिंपल सिंपल ट्रिक यू हैव टू रिमेम्बर. डन. ओके, नाउ ऑल ओवर. अब क्लोज कर सकते हैं हम लोग. Yes, yes, very good. Now creditors and loan left. उसको तो भैया सोचना है उसके बारे में. देखो बाकी एडजस्टमेंट तो सब हो गई है, लेकिन ये दोनों तो जब तक हम पे नहीं करेंगे, दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, जब तक हम इनको पे नहीं करेंगे, शांति नहीं करेंगे इनकी, तब तक यह हम हमारी फर्म डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं. डन. सो चलो देखते हैं कितना पैसा जमा है, कितना हम पे कर सकते हैं. लेट्स मूव. Now see your creditors we have to pay 50,000, loan we have to pay 30,000. Now what we have to do, हमने प्रॉमिस किया था लोन, हमने मशीनरी के अगेंस्ट लोन लिया था, तो हमने प्रॉमिस किया था भैया जो भी मशीनरी की अमाउंट आएगी वो हम उससे हम लोन पे करेंगे. सो इट्स टाइम टू पे द लोन. तो मशीनरी का याद करो, पीछे बैक जाओ और देखो, और बैक जाने की जरूरत नहीं, आपके नोटबुक में लिखा है, आपने मेरे साथ ही आप सॉल्व कर रहे हो, है ना. सो देखो आपके नोटबुक में 18,000 हमने मशीनरी सोल्ड की थी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 18,000. बस अब वक्त आ गया है वो पे करने का. सो हमने ये जो 30,000 का लोन लिया था उसके अगेंस्ट मशीनरी के जितने भी पैसे मिले थे वो हमने पे कर चुके हैं. डन. तो हमने यहाँ पे 18,000 दे दिया. लोन के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में लोन. सी अगेंस्ट मशीनरी. डन. आया समझ में. ओके, नाउ अब स्लोली स्लोली आपको समझना है आपको कैसे ये अकाउंट क्लोज करने हैं. अब लोन का तो थोड़ा 30,000 में से भैया 18,000 तो दे दिया, थोड़ा सा तो उसको मुंह चुप कर दिया हमने, फिर भी 12,000 है बाकी. देखते थोड़ा हिसाब, हमारे पास यहाँ पे कैश अकाउंट है.
अब प्रीति, प्राची, इन्होंने देखा कि चलो देखते थोड़ा काउंट करते कैश कितनी है, तो उन्होंने काउंट की, तो कैश उनको पता चली 80,400। इसकी पूरी टोटल आई 80,400 डेबिट साइड, ठीक है। माइनस उन्होंने देखा कि ये भी हमने पे किया, लोन भी पे किया, मतलब 20,000 तो हमने पे किए, तो कम हो गए। तो अब कैश कितनी बची है? 60,400, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा देखा कैश अकाउंट को, थोड़ा सा टटोल लिया कितने पैसे बचे, तो जितना उन्होंने काउंट बेचा था, ये प्रीति ने भी थोड़ी सी हेल्प की थी, तो इतना दे कलेक्टेड 80,400। Out of that they pay this 20,000. See here, so debit minus credit. So now how much cash left with them? 60,400. Now but wait, now they will not get happy कि चलो 6,400 बचे. Now still they have to pay creditors as well as loan की भी थोड़ी अमाउंट बाकी है ना. So देखते हैं कैसे पे करते. See here, आपके सामने मैंने बताया बाइफरकेट करके. देखो here, इसमें से हम क्रेडिटर्स पे करेंगे 50,000. अब हम पे कर सकते हैं ना 50,000. देखो 6,400 थे तो हम पे कर सकते थे, तो हमने पहले क्रेडिटर्स का मुंह बंद कर दिया, वी पे द 50,000, ठीक है। कैश के क्रेडिट में क्रेडिटर्स 50,000 सी, और मैंने बताया है आपको करके यहाँ पे, तो जो 6,400 था वो हमने पे किया क्रेडिटर्स को 50,000, और जो बचा अमाउंट 10,400 वो हमने फिर से लोन पे कर दिया, क्योंकि आखिरी सांस तक हमें पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है। सो जो भी 6,400 बचा था, नहीं अगर समझा तो फिर से बैक करो मेरा वीडियो और समझ लो ये कहाँ से आया। उसमें से है प्रीति प्राची ने डिसाइड किया कि चलो क्रेडिटर्स का तो 50,000 कंप्लीट हो रहा है, जो बचा है लोन वो हम मशीनरी को देंगे, और इस तरह से उन्होंने लोन पे कर चुका है। देखो यहाँ पे हमने किया है 50,000 यहाँ पे किया है, डन। और लोन का भी पे किया है 10,400। अब देखो, अब अगर टैली करोगे तो सब पैसे हमारे खत्म हो चुके हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 8400 था, इसमें से ये दो माइनस किया था तो 6400 बचा था, लेकिन वो भी हमने क्रेडिटर्स और लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने लोन और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारा कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया, कुछ भी पैसा बचा नहीं बेचारे पार्टनर्स के लिए, ठीक है। सो नाउ सी योर सेकेंड इफेक्ट, देखो यहाँ पे, यहाँ से एंट्री की थी, हमने पे किया 50,000, सेम ईयर लोन भी हमने पे किया 10,000, ये तो ऑलरेडी हमने पे किया था, प्लस अब जो बचे 10,400 वो भी पे कर दिया, और इस तरह से हमने क्या किया, टैली कर दिया। क्रेडिटर्स तो हो गया टैली, 50 पे करना था, हमने यहाँ से पे कर दिया, ठीक है। क्रेडिटर्स इज द रिसीवर, सो डेबिट में हमने कैश लिखा। कैश क्यों लिखा? क्योंकि सेकेंड इफेक्ट हमने कैश के क्रेडिट में किया था, ठीक है। सो क्रेडिटर्स इज अ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने डेबिट साइड लिखा 50,000। और अगर ट्रिक वाइज आपको समझना है तो एंट्री हमने पोस्टिंग यहाँ से की थी, पे करना है तो यहाँ से करोगे टू कैश। सो दिस इज ओवर। नाउ यहाँ पे देखते हैं लोन में क्या हो गया। सो 30,000 का लोन था, कोशिश की हमने पे करने की 18,000, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि भैया जितने भी मशीनरी बेचने के बाद पैसे आएंगे वो पूरे पैसे आपको हम देंगे, तो ये 18,000 तो हमने दे दिए, प्लस 10,400 कैश और बची थी वो भी पे कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट बची है, सी, फिर भी 1,600 रुपए बचे हैं, लेकिन अब मजबूरी है, अब दे आर नॉट कैपेबल टू पे एट ऑल, they don't have now any option to pay, so now automatically this amount will transfer to the deficiency account, so that is why we open here deficiency account, क्योंकि अब ये कोई भी हालत में पे ही नहीं कर सकते हैं। सो अब ये देखो बेचारे जिसने भी लोन दिया होगा उसको तो घाटा ही हुआ ना 1,600, सो दिस विल गो डेफिशिएंसी अकाउंट। लोन के डेबिट में डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट में लोन 1,600, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, ठीक है। अंडरस्टूड? वाई ओपन वी ओपन हियर टू सेपरेट अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स का तो हो गया,
लकी था क्रेडिटर्स की उसका पेमेंट हो गया, बट लोन नहीं, लोन वी कैनॉट पे फुल अमाउंट, स्टिल we have to pay 1600, but now all door close, now there is a no option, so मजबूरी में हमें क्या करना है, ये डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। डन, नाउ विल क्लोज द अकाउंट, हो गया, बस इतना ही हमें करना है। अगर क्रेडिटर्स के बाद कुछ बैलेंस होता, देखो मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है ऐसे आ सकता है कि क्रेडिटर्स पे ओनली 40,000, 50 के जगह 40,000 ही हम पे कर सके, सपोज ऐसी इक्वेशन आती तो आप क्या करते। सो अगेन 10,000 डेफिशिएंसी यहाँ पे बचता ना, ठीक है, ये 10,000 डेफिशिएंसी बचता आपका, तो ये 10,000 भी हमने इधर ही ट्रांसफर किया होता, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट, बट लकीली क्रेडिटर्स बच गया। क्रेडिटर्स ने क्या किया, क्रेडिटर्स को हमने सब पे कर दिया, देखो मैं रफ कर रही हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो देयर इज नो बैलेंस, और डेफिशिएंसी ट्रांसफर होने की सवाल ही नहीं है। ओके, नाउ विल मूव टू द रियलाइजेशन। अब सिंपल सा क्लोज करना है, आपको क्लोज तो आता है आपको, सी विच साइड हेवी, ऑफ कोर्स विच साइड हेवी, डेबिट, इतनी हालत खराब है, प्रॉफिट कहाँ से आएगा भैया, दे विल गेट लॉस ओनली, सी लॉस 21,000, बुक में चेक करो 21,000, ठीक है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लॉस, और रियलाइजेशन किसको ट्रांसफर करते हैं, ऑफ कोर्स पार्टनर्स के, यहाँ पे क्रेडिट है तो हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के डेबिट में, सी हियर लॉस, बेचारे रिसीवर 7,000 का लॉस हो गया, एक तो पहले ही हालत खराब, उसमें और 7,000 का लॉस सबको। नाउ विल क्लोज दिस अकाउंट, आपकी मर्जी कोई भी अकाउंट क्लोज करो, मैं हमेशा लास्ट पीछे से अकाउंट ओपन करती हूँ, पीछे जो अकाउंट रहेगा ना, ये सी प्राची, तो पहले प्राची का करती हूँ, प्रिया का करती हूँ, फिर प्रीति का करती हूँ, आपकी मर्जी, आप आगे से भी अकाउंट कर सकते हो क्लोज, प्रीति का पहले, फिर प्रिया का, फिर प्राची का, ठीक है। सो प्राची का अकाउंट क्लोज कर दिया, किधर बैलेंस आ रहा है, ऑफ कोर्स 10,000 यहाँ पे आ रहा है, सेम अबाउट प्रिया, प्रिया ऑफ कोर्स नाउ वी हैव टू ट्रांसफर डेफिशिएंसी अकाउंट, कोई बचा ही नहीं है, अब इनको भी कम है तो डेफिशिएंसी में ही करेंगे। प्रिया का लकीली सब दोनों टैली हो गया, नो बैलेंस लेफ्ट ही, इसकी टोटल भी 35 आ रही है और 35, तो नो बैलेंस लेफ्ट। व्हाट अबाउट प्रीति, यस प्रीति का भी बैलेंस आ रहा है, बट प्रीति का बैलेंस डेबिट आ रहा है, बट विल हैव टू ट्रांसफर द डेफिशिएंसी, भैया कोई चारा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। सो नाउ बोलो, जो डेबिट में है वो डेफिशिएंसी क्रेडिट में जाएगा, और जो क्रेडिट में है वो डेफिशिएंसी के डेबिट में जाएगा, सी हो गया, एंड डेफिशिएंसी अकाउंट गेट टैली। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो वीडियो आपके हाथ में ही है, बार बार पॉज करो, देखो, जितने बार देखोगे समझ में आएगा, और इससे और हार्ड लेवल आपके 12th के लिए नहीं है। तो अभी तक जितने भी 10 years तक मैंने देखे ये क्वेश्चंस, इतने हार्ड लेवल पे नहीं पूछे उन्होंने, तो आप सिर्फ 4-5 बार प्रैक्टिस करो, श्योरली आपको आएगा। और प्लीज प्लीज डिसोल्यूशन एक जो है चैप्टर, डोंट स्किप, बहुत मजेदार है, मार्क्स है, ठीक है, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे से मिलते हैं। नाउ व्हाट लेफ्ट, आई गेस 12th वन लेफ्ट एंड जर्नल एंट्री लेफ्ट, जर्नल एंट्री तो आपको मैं सिखा दूंगी एक वीडियो में, और एक बचा है, एंड आई गेस थर्ड वन, यस यस थर्ड वन लेफ्ट, तो अभी 3 और वीडियोस में डिसोल्यूशन के अपलोड करूंगी। फिर बहुत सारे लोगों की डिमांड आई है कि रिटायरमेंट भी मिस करो आप, तो मैं रिटायरमेंट भी एक बार अपलोड करूंगी। चलो, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी आपके साथ थोड़ी सी पढ़ाई के लिए बिठाओ। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।